Hi, today we will be discussing about innovation in India. Recently, there has been a report regarding innovation in India, regarding innovation in the world, ranking the countries around the world. So today's question will be: innovation is the cornerstone of a growth in a country. Evaluate the issues related to innovation in India and various government measures aimed at promotion of it in the country. So we have three parts of this question. The first part says that innovation is the cornerstone of growth in a country. So we will tell how innovation is related to economic growth in the country or growth in the country. Second part asks about the issues related to innovation in India, and the third part discusses or asks about various government measures that has been taken in order to improve innovation in India. So let's start the answer. We will start with intro. इंट्रो में वी कैन राइट ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2022 में इंडिया की जो रैंकिंग है, रिसेंटली दिस रिपोर्ट ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2022 वाज रिलीज्ड, जिसमें इंडिया की रैंक काफ़ी इंप्रूव है एंड इट हैज़ ब्रोकन थ्रू इन द टॉप 40 फॉर द फर्स्ट टाइम. 2015 में ये रैंक 81 थी. सो यू कैन सी कि इन 7 year पीरियड आवर रैंक हैज़ इम्प्रूव्ड बाय नियरली 40 रैंक्स, and we are the first ranked in the Central and South Asia region and among the lower middle income group countries. So we will first discuss the significance of innovation for economic growth, how innovation is related to economic growth. That is the first component or part of our body of our answer. So let's discuss innovation, significance of innovation. So right now, innovation means what innovation is. Innovation is use of new ideas and technologies in doing any kind of activity or work, जिससे क्या होता है कि हमारा जो आउटपुट है वो सेम इनपुट में हमारा आउटपुट जो है वो बढ़ जाता है, एंड दैट रिजल्ट्स इनटू प्रोडक्शन ऑफ मोर गुड्स एंड सर्विसेज विद द सेम अमाउंट ऑफ एफर्ट. So this increases our production, this increases our productivity. This is basically the improved productivity of our country if we do innovation. So improved productivity means more production of goods and services that leads to increased trade and business, which subsequently leads to increased wages and profitability of the businesses, and that leads to higher overall growth of the country or the socio-economic growth of the country. So this is the relation between, or this is the significance of innovation for economic growth of any country. अगर हम सेक्टोरल इनोवेशन की बात करें, एग्जांपल्स देखने की बात करें, तो एग्रीकल्चर में फॉर एग्जांपल द यूज़ ऑफ ड्रोन्स और द यूज़ ऑफ और द कल्चर ऑफ कल्टिवेशन ऑफ बीटी कॉटन हैज़ इम्प्रूव्ड अवर प्रोडक्टिविटी. हेल्थ केयर में द इम्प्लीकेशन ऑफ ई संजीवनी विच हैज़ मेड द ओपीडी मोर एंड मोर एक्सेसिबल फॉर मोर एंड मोर नंबर ऑफ पीपल. इंडस्ट्रीज़ में द यूज़ ऑफ एआई एंड एमएल, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग, विच हैज़ इम्प्रूव्ड द growth and productivity of the industries. And education mein it is the e-Pathshala and e-Vidya in the learning process. So these are some of the examples of the improvement in innovation or use of innovation in the sectors. Similarly, you can write down land reforms में जो e-Bhumi टाइप के प्रोजेक्ट हैं. e-Bhumi is a project of Karnataka, जिसमें लैंड का जो है मैपिंग की जाती है, लैंड रिसोर्सेज जो है इनको मैप किया जाता है, और लैंड के जो टाइटल्स हैं, डिस्प्यूट्स हैं, इनको रिजॉल्व किया जाता है विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी, सो दैट रिजल्ट्स इनटू रिड्यूस्ड कन्फ्लिक्ट, मोर वर्क, मोर रिफॉर्म्स, मोर एक्सेसिबल वेलफेयर बेनिफिट्स. So these are some of the sectoral innovations related to some sectors. Let's now discuss the second part of the question, that is related to issues in the innovation sector, issues in promoting innovation in the country. First is we have a very low amount of research and developmental spending in the country. R&D हमारे country में बहुत poor है. It is hardly 0.6% of the GDP as compared to US and China, which are the top two countries, which are one of the highest ranked countries in the field of innovation. हमारा innovation में जो R&D में जो spending है that is very low. जब तक research and development नहीं होगा, innovation के chances बहुत ज़्यादा weak हो जाते हैं. सेकेंड इज़ पेटेंट डिलेज. हमारे यहाँ पेटेंट प्रोटेक्शन रिजाइम जो है दैट इज़ वेरी वीक, इसलिए कोई भी पर्सन कुछ डेवलप करता है तो उसे मार्केट में उतारने से पहले 10 बार सोचता है, मार्केट में उसे कमर्शियल स्केल अप करने से पहले सोचता है, बिकॉज इट्स प्रोडक्ट इज़ नॉट पेटेंटेड और प्रोटेक्टेड. दूसरे उसको कॉपी करके बहुत ईजिली वो बना लेते हैं
एंड ही बियर्स अ लॉट ऑफ हाई अमाउंट ऑफ लॉसेस। थर्ड इज़ हमारा एजुकेशन सिस्टम बहुत वीक है। हमने कल भी टेक्निकल एजुकेशन में ये डिस्कस किया था कि हमारे एजुकेशन में रोट लर्निंग या फिर मेमोराइजेशन को ज़्यादा एम्फेसाइज किया जाता है रेदर देन ऑन थिंकिंग क्रिएटिवली, विच प्रिवेंट्स इनोवेशन इन द कंट्री। सो दिस इज़ वन ऑफ द वीकेस्ट लिंक ऑफ आवर एजुकेशन सिस्टम। फोर्थ इज़ हमारे यहाँ एकेडमिक्स और इंडस्ट्री का कोलेबोरेशन बहुत वीक है। हमारे यहाँ एकेडमिक्स में जो भी थियोरेटिकल या प्रैक्टिकल नॉलेज डेवलप होता है उसे इंडस्ट्रियल लेवल पे इम्प्लीमेंट करने में या फिर इंडस्ट्रियल लेवल पे, कमर्शियल लेवल पे उसको स्केल अप करने में बहुत ज़्यादा इश्यूज़, बहुत ज़्यादा उसको बेसिकली दे यूज़ टू कीप बी रिलक्टेंट। इन दोनों के बीच में बहुत गैप है। इंडस्ट्री हैज़ द एडवांटेज ऑफ स्केलिंग अप ऑफ एनी प्रोडक्ट, एकेडमिया हैज़ द कैपेबिलिटी ऑफ डेवलपिंग न्यू प्रोडक्ट, बट दोनों के बीच में जो गैप है उससे जो न्यूली डेवलप प्रोडक्ट और टेक्नोलॉजीज़ हैं वो इंडस्ट्रियल स्केल अप के स्टेज तक नहीं पहुंच पाती हैं, जिससे कमर्शियल स्केल अप नहीं होता है एंड बिजनेस इकोसिस्टम उस न्यू प्रोडक्ट और टेक्नोलॉजी के अराउंड में डेवलप नहीं हो पाता है। देन लास्टली लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। हमारे यहाँ आज भी कनेक्टिविटी से रिलेटेड इश्यूज़ बहुत प्रिवेलेंट हैं। अर्बन सिटीज़ में इट इज़ ओके, बट रूरल सिटीज़ जहाँ पे हमारी अभी भी 60% से ज़्यादा पॉपुलेशन रहती है, वहाँ पे इवन 3G की कनेक्टिविटी भी प्रॉपर नहीं है। सिग्नल्स बहुत वीक होते हैं, इंटरनेट की स्पीड बहुत डाउन होती है। इसलिए उन इनोवेटिव टेक्नोलॉजीज़ जैसे कि ई संजीवनी, ई एजुकेशन, ई लर्निंग, इन टाइप के रिसोर्सेज का यूज़ बहुत ज़्यादा लो होता है। दीज आर द सम ऑफ द प्रिवेलेंट इशू या प्रोमिनेंट इशूज़ रिलेटेड टू डेवलपमेंट ऑफ इनोवेशन इन इंडिया। इसे डील करने के लिए गवर्नमेंट ने कुछ स्टेप्स लिए हैं, उन स्टेप्स के बारे में देख लेते हैं एक बार ब्रीफ में। 2015 में गवर्नमेंट ने डिजिटल इंडिया लॉन्च किया था, जिसमें सारे सेक्टर्स में, पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर में डिजिटल टेक्नोलॉजीज़ को यूज़ करने के प्रमोट किया गया था बहुत ज़्यादा हाई लेवल पे। इसका एक प्रोमिनेंट सक्सेसफुल एग्जांपल है यूपीआई, जिसने हमारे यहाँ पेमेंट सिस्टम को रेवोल्यूशनाइज कर दिया है। सेकेंड इज़ डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड कॉमर्स जो है, इसने एक स्टार्टअप इंडिया नाम से एक स्कीम निकाली है। दिस इज़ DIPP, डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन एंड प्रमोशन। इन्होंने एक स्कीम अपने अंदर में एक मैनेज करते हैं, दैट इज़ स्टार्टअप इंडिया। स्टार्टअप इंडिया स्कीम के अंदर में ये बेसिकली वो स्टार्टअप्स विच आर यूजिंग न्यू इनोवेटिव आइडियाज़ और प्रोडक्ट्स और टेक्नोलॉजीज़, उनको ये फंडिंग प्रोवाइड करके सपोर्ट प्रोवाइड करने की कोशिश करते हैं ऐसे स्टार्टअप इंडिया स्कीम के अंदर में, सो दैट वो स्टार्टअप जो है एक फुल फ्लेज्ड बिजनेस में कन्वर्ट हो पाए। इसके अलावा बिराक का सीक फंड, बिराक एक बायोटेक्नोलॉजी रिसर्च काउंसिल एडवाइजरी बॉडी है, जिसके अंदर में इन्होंने एक फंड बना के रखा हुआ है, जिसमें एक कोई भी स्टार्टअप जो बायोटेक्नोलॉजी रिलेटेड इनोवेटिव स्टार्टअप को डेवलप कर रहा हो, उन स्टार्टअप को इस सीड फंड में से, मतलब इनिशियल फंड में से, इनिशियल नीड जो होती है फंडिंग की स्टार्टअप को अपने आप को स्केल अप करने में, वो इस सीड फंड में से उनको फंडिंग प्रोवाइड करके, सपोर्ट प्रोवाइड करके डेवलप होने में हेल्प करते हैं। इसके अलावा नीति आयोग के 2 इनिशिएटिव हैं, जिसमें एक है अटल इनोवेशन मिशन। अटल इनोवेशन मिशन यंग जो एंटरप्रेन्योर्स हैं, जो यंग पीपल हैं, उनमें एंटरप्रेन्योरशिप की स्पिरिट को प्रमोट करने में हेल्प करता है। एक अटल टिंकरिंग लैब नाम का एक कंसेप्ट है इसमें, जिसमें ओवरऑल अक्रॉस द कंट्री अराउंड 9000 लैब्स जो हैं वो डेवलप की गई हैं, जो स्कूल के जो चिल्ड्रन हैं उनमें इनोवेशन की जो स्पिरिट है उसको प्रमोट करने में हेल्प करती है। देन मेंटर इंडिया कैंपेन, इसके अंडर में अगर किसी के पास कोई इनोवेटिव टेक्नोलॉजी है या कोई प्रोडक्ट है या कोई भी आइडिया है, उसे फुल स्केल डेवलप करने में जो भी और मेंटरशिप की नीड होती है कि कैसे उसे कमर्शियल लेवल पर कन्वर्ट किया जा सके आइडिया या इनोवेशन को, सो वहाँ पे एक्सपीरियंस्ड पर्सन जो होते हैं स्टार्टअप की फील्ड में या बिजनेस की फील्ड में, दे मेंटर दैट पर्सन टू डेवलप दैट बिजनेस। देन आता है इंस्पायर फेलोशिप। इंस्पायर फेलोशिप में साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड एजुकेशन और इनोवेटिव आइडियाज़ को डेवलप करने में हेल्प की जाती है, स्पेसिफिकली साइंस एंड टेक्नोलॉजी की रिलेटेड, इस एजुकेशन से रिलेटेड। देन IPR की रजाई में कुछ स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स किए गए हैं गवर्नमेंट ने, जिसके अंदर में IP ऑफिसेस जो हैं, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के जो ऑफिसेस हैं, उनको मॉडर्नाइजेशन का काम चल रहा है। उनकी जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी प्रोवाइड करने का, जो राइट्स प्रोवाइड करने का जो प्रोसीजर है, उसको फास्ट ट्रैक और ज़्यादा स्मूथ बनाने की, स्ट्रीमलाइन करने की वर्किंग चल रही है। लास्टली नेशनल एजुकेशन पॉलिसी या न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020
इसके अंदर में देर इज़ अ बेसिकली अ मोटो या ऑब्जेक्टिव कि अब हमारी जो एजुकेशन है, एजुकेशन सिस्टम है, उसको हम प्रमोट करेंगे टुवर्ड्स द स्पिरिट ऑफ क्रिएटिविटी। वी विल नॉट प्रमोट रोट लर्निंग, या हमारा जो करिकुलम है उसको हम रीमॉडिफाई करके कुछ ऐसा बनाएंगे कि इट विल नॉट प्रमोट रोट लर्निंग या रोट मेमोराइजेशन, इट विल प्रमोट creativity right from the beginning of the childhood and inculcate the feeling or inculcate the basically the spirit of entrepreneurship जो आगे चल के बच्चे अपने यूज़ करें और उनसे बड़े बिजनेस खड़े करें। वे फॉरवर्ड की बात करूं तो गवर्नमेंट को क्या स्टेप या कंक्लूजन क्या है हमारा, ये हमने कंक्लूजन में हमने बेसिकली अभी तक बॉडी पार्ट डिस्कस कर लिया, जिसमें वी डिस्कस्ड जो क्वेश्चन की नीड थी। द क्वेश्चन आस्क्ड व्हाट आर द इश्यूज रिलेटेड टू डेवलपमेंट ऑफ इनोवेशन इन इंडिया and what are the steps taken by government of India in order to promote innovation. Now we will end the answer with a recommendatory या constructive criticism या constructive positive note. So यहाँ पे हमारा वे फॉरवर्ड ये रहेगा जो इन इश्यूज़ को एड्रेस करने में हेल्प रहे। तो फर्स्ट वी नीड टू इंक्रीज अवर GDERD, दैट इज़ ग्रॉस डोमेस्टिक एक्सपेंडिचर और ऑन रिसर्च एंड डेवलपमेंट, दैट इज़ हमारा GDP का वो प्रपोर्शन जो R&D में हम स्पेंड करते हैं विच इज़ अराउंड 0.6%, इसको वी शुड टेक टूवर्ड्स 2% तक हमको कोशिश करना चाहिए ले जाने की, सो दैट हमारा जो विज़न है $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने का इंडिया को, वो हम विज़न जो है अचीव कर सकें सूनर एज पॉसिबल। द सेकेंड थिंग वी नीड टू इंक्रीज़ द प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन। प्राइवेट सेक्टर जो है ये बेसिकली कमर्शियल स्केल अप करने की कोशिश करती हैं, चीज़ों को नए नए प्रोडक्ट डेवलप करने की। अगर हम इनको सपोर्ट देंगे और प्राइवेट सेक्टर का पार्टिसिपेशन अगर हम प्रमोट करेंगे इन वेरियस सर्विसेज ऑफ गवर्नमेंट एसोसिएशन करके, सो दे विल बी ट्राइंग न्यू एंड न्यू इनोवेशंस फॉर द डेवलपमेंट ऑफ बेटर प्रोडक्ट्स दैट विल इम्प्रूव द इनोवेशन इन आवर कंट्री। द थर्ड इज़ नॉलेज वर्कर को हमको प्रमोट करना है। हमारा जो एक बेसिकली पिलर है, हमारे यहाँ वर्कर्स तो बहुत प्रोड्यूस हो रहे हैं, बट नॉलेज वर्कर्स विच कैन जनरेट न्यू एंड न्यू आइडियाज़, वर्क ऑन न्यू एंड न्यू आइडियाज़, वर्क ऑन न्यू एंड न्यू प्रोडक्ट्स, बेटर प्रोडक्ट्स, वो हमारे वर्कर्स इस टाइप के अभी तक नहीं हैं। दे आर नॉट स्किल एफिशिएंट, दे आर नॉट आइडिया इनोवेशन एफिशिएंट। सो ऐसे वर्कर्स विच आर अडाप्टेबल टू नॉलेज, विच आर अडाप्टेबल टू न्यू एंड न्यू नॉलेज, विच कैन प्रोड्यूस न्यू एंड न्यू नॉलेज, ऐसे नॉलेज वर्कर्स को हमको प्रमोट करना है, सो दैट अल्टीमेटली we can become an economic superpower just like China or US. So that is the importance, that was the importance of innovation. हमारी rank improvement shows कि we are trying our best in every sector or every field possible in order to promote innovation, but we should try more and more to someday break into top 10 in the world. This was about innovation. I hope you got the rhythm or theme of the question and the basic format of this answer whenever it comes into the mains. Please note it down and try to write this answer after I first put up the question in the starting. Just pause the video, just write your own answer and then watch this video so that you can figure out ki what are the important points which you should have covered, what was the basic format you should have followed if there is a mistake in your format, and suggest your basically any missing point in this answer also in the comment section so that others can also benefit from it. Thank you very much.